and when there are no or very few native people, a lot of native knowledge has already been lost. But a differentiation is that the native knowledge tried to see the whole as an interconnected thing, okay, whereas the Western science sees it as parts. So the way you have been educated in many things since school days, whatever subjects you have studied, whether it is grammar or you have studied as what are the parts. All the subjects that you have studied them as parts. What are the relations in those parts? But parts is what you have been trained to look at things. Okay, and you have gone deeper into parts and subparts, and that is what is expected of you to do when you do your own PhD. Is you will try to explain the parts of something. You will try to show the parts of something. Okay, so that have not yet been seen, or you will show some part that has not yet been seen. Okay, so that is one difference. Holistic to parts. Holistic means integrated, whereas this is partitioning it into different components. Okay, here in the traditional world, the physical and the divine and the moral code is all interconnected. The physical world, the divine world, and the moral code is all interconnected, whereas Western world limits itself to the physical world. It does not get into the questions of divine, etc. And it does not even get into the questions of morality. Okay, whereas in the traditional knowledge, the morality is embedded in it. Okay, in traditional knowledge, practical application of the skill and knowledge is very important, whereas in modern scientific world, emphasis on understanding how is this. Okay, whether it can be applied or not, that's a different thing, but understanding of the how and the internal structure is very, very important in the Western scientific worldview. Okay, the traditional knowledge has a lot of trust in the wisdom that is inherited from the generations, from the past generations. Okay, whatever inherited knowledge and the wisdom is there from the past generations, there is a lot of trust in that. Whereas this is very much opposite in the Western scientific world. There is a lot of skepticism. Skepticism का मतलब क्या हुआ? Can anybody explain what is this word? Skepticism or skeptical? Has anybody heard of this word before? Skeptical. Doubt. Which is not easily to get. No, doubt. Yes, to sir. doubt. To doubt. Okay. To doubt. शक करना. To doubt करना. Okay. तो ट्रस्ट की बजाय इस डाउट पर एम्फेसिस है. Whereas in the traditional knowledge, जो दादाजी ने कहा उस पर ट्रस्ट है, ब्लाइंड ट्रस्ट है, जो भी कहा ठीक है, और जो दादाजी के दादाजी ने कहा वो और ज्यादा ब्लाइंड है उसमें, क्योंकि वो तो और पुराना है, और जो उनके दादाजी ने कहा उस पर और ज्यादा ट्रस्ट है. So there is a lot of trust in the inherited wisdom, whereas here there is a value to skepticism, that is doubt. Whatever comes from wherever, you doubt that. You don't just trust that as it is without questioning. There is so Western science is values skepticism much more than it values trust. है ना? हमने तुम लोगों ने ये बहुत सुना होगा, अपने कल्चर में तो बहुत ही वर्ड आता रहता है ना, विश्वास करो विश्वास करो, है ना? हर कोई ये कहता रहता है विश्वास करो, है ना? विश्वास करो तो ये हो जाएगा, विश्वास नहीं करोगे तो कुछ नहीं होगा, है ना? तो there is a lot of trust in the inherited wisdom in the traditional native knowledge, whereas in the scientific world there is no scope for such kind of trust in the inherited wisdom. It is skepticism. Okay. In traditional knowledge, there is practical experimentation. Okay. Whatever is applied, वो practical experimentation पे उसमें होता है. Okay.
whereas here in the scientific word, direct or indirect observation and measurement पर focus है. So science is focusing on observation and measurement. दो वर्ड आ रहे हैं यहाँ पे, direct and indirect. Can you give me some example of indirect observation? Can anybody give me some example of indirect observation or indirect measurement? अच्छा चलो डायरेक्ट का ही दो पहले. We will discuss more on these issues in the next course of research methodology that will start in November, है ना. पर डायरेक्ट और इनडायरेक्ट का थोड़ा सा मुझे कोई एग्जांपल दो. Self exclude. हाँ? Sir, direct measurement, like observation, like interview. Indirect measurement, like we are applying already establishing theory, which is practically or scientifically proved. कोई एग्जांपल दो मुझे बजाय एक्सप्लेनेशन के. डायरेक्ट का तो बोल दिया सर. इंटरव्यू एंड observation through some scientific instruments like CCTV camera. Okay. That is direct measurement. Indirect measurement, like applying some theory, like we are using Newton's formula. E is equal to mc square for calculating some calculation. ठीक है, ठीक है. और कोई कुछ बोलो, उसकी बात शायद सबकी समझ में नहीं आई होगी. बोल ठीक रहा है वो. एक बाइक की स्पीड है. हाँ? एक बाइक की स्पीड है कुछ लाइक 20 किलोमीटर पर. ये हमारी डायरेक्ट ऑब्जर्वेशन होगी. पर वो स्पीड की मेटर किस पर कर रही है, जैसे टॉर्क पे, घर्षण पे कर रही है, और भी कई चीजें, मतलब जो उसमें टायर में रबर यूज हुआ है, इन सब पे इनकी मेजरमेंट्स को ये इनडायरेक्ट मेजरमेंट्स में आ गए. नहीं 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 नहीं. और कोई बोले, और कोई बोले. Sir, in general, I am giving an example. If anybody sees someone he is getting angry or चिड़चिड़ापन ज्यादा है, that case, if he is diabetic patient, तो उनकी इन symptoms को देखकर we observe that sugar up and down है. But if we test through the machine, okay, वो indirect. Okay, okay, ठीक है, ठीक है, चलो ठीक है. तो आप सब लोगों को एक एक्सरसाइज है, ये मैं पोस्ट करता हूँ यहाँ पे. अपने अपने डिसिप्लिन एरिया में जो भी आपका डिसिप्लिन है जिसमें आप ये हो, है ना, उसकी कुछ डायरेक्ट और इनडायरेक्ट मेजरमेंट्स की ओके एग्जांपल साइट करनी है. ये आप लोग करते रहना आराम से. लेट मी गो बैक टू दैट टास्क. एंड यू हैव टू डू इट इन योर एरिया. HR है तो HR में करना, फाइनेंस है तो फाइनेंस में करना, इलेक्ट्रॉनिक्स है तो इलेक्ट्रॉनिक्स में करना, जो भी है. ओके this value you have to really understand very well, that to doubt is the first step for forward movement in modern science. डाउट करना बेइज्जती करना नहीं होता है. हमारी ट्रेडिशनल नॉलेज में डाउट करना बेइज्जती करना मान लिया जाता है ना. जो बुजुर्गों ने कहा अगर उस पर डाउट करें तो वो उनकी बेइज्जती लगती है उनको. लेकिन साइंस में ऐसा नहीं है.
To doubt is not to insult, because there is a more important thing, which is the scientific culture, that gets furthered when you doubt what gets presented in front of you. Okay. Traditional knowledge में oral record बड़ा important है, qualitative oral record. You have oral descriptions, you know, चाहे वो mythologies हैं या किस्से कहानियां हैं, you know, oral tradition is very, very important. कहावतें, lot of wisdom in the idioms, in the phrases, stories. Okay, there is a oral record. Oral record is taken as evidence कि वहां पर ऐसा, उस गांव में ऐसी कहानी चलती, तो वहां पर ऐसा कभी हुआ होगा. It is given value. It is a truth is because there is an oral tradition. So there is something that you have heard from the past, and that is considered as the basis for the correctness of the knowledge. Whereas in scientific world, this oral record is not really given that kind of value. There is a hypothesis falsification that is required in order to check whether something is correct or not. So you have to formulate hypothesis and see if it is correct or not. We will see more of it in the next course. Okay. Local verification is considered as sufficient in the traditional knowledge, whereas there is a global requirement of global verification in the modern science. This is very, very important difference. है ना? Local verification मतलब ग्राम देवता, कुल देवता, all that is very, very important. वो local verification है. ठीक है ना? Very, very local. Yes. Something which has a local support is considered to be correct. Whereas in science, local support is insufficient. It has to have global acceptance. Yes. That's a big difference in the traditional knowledge and the global and the modern scientific knowledge. Big, big difference. A local verification by your community, by your village, or by a class of people is sufficient there. Certain thing is accepted to a smaller group, that is sufficient. Whereas here the verification has to be global. Entire world is having the opportunity to verify whatever is the claim. Here certain thing is accepted in a tradition, and that is fine. राम जी भगवान के अवतार थे, एक सर्टेन क्लास ऑफ पीपल मानते हैं, विच इज फाइन. अब ये फिजिक्स वाला ये नहीं मानेगा कि राम जी उसके अवतार थे, क्योंकि वो फिजिक्स की तरह से वो वो लोकल वेरिफिकेशन नहीं हो सकता ना उसमें. क्रिश्चियन नहीं मानेगा, तो दैट मीन्स इट इज नॉट ग्लोबल वेरिफिकेशन, है ना. या वो क्रिश्चियन बोलेगा कि क्राइस्ट भगवान का बेटा था. अब हम कहेंगे हमको नहीं पता, हम नहीं मानते. ठीक है, तो ग्लोबल वेरिफिकेशन नहीं है वहां पे. Whereas in traditional knowledge, local verification is okay. Right? Rajasthan में there is a Vishnu's local avatar देवनारायण. तुम में से कुछ लोग शायद सुने होंगे. सुना है किसी ने? यस सर. क्या सुना है? सर हमारे इधर तो काफी उनकी मूर्तियां होती, काफी पूजा होती है. जैसे है ना कुमाऊं समाज वगैरह के जो लोग हैं उनको काफी मानते हैं सर. क्या मानते हैं उनके बारे में? स्टोरी नहीं सुना सर मैंने. देवनारायण के बारे में क्या मानते हैं वो? देवनारायण को क्या मानते हैं वो? सर वो भगवान मानते हैं. नहीं, भगवान तो मानते हैं, पर कौन सा भगवान मानते हैं? विष्णु वो विष्णु का अवतार मानते हैं. ठीक है. अब जो तुमने जो दशावतार की कहानी पढ़ी है, जो 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 मेन स्ट्रीम जो बड़ा वाला हिंदुइज्म है, उसमें तो देवनारायण का कोई अवतार नहीं आता.
ठीक है, लेकिन एक लोकल कम्युनिटी है जहां पर देवनारायण को विष्णु का अवतार माना जाता है, और ऐसे बहुत सारे अवतार हैं हिंदुस्तान में फैले हुए हैं जो लोकल कम्युनिटी में माने जाते हैं। ग्लोबल कम्युनिटी में उनके बारे में कोई अवेयरनेस ही नहीं है। देवनारायण एज ए गॉड इज नॉट नोन इन यूपी एक्सेप्ट फॉर दोज हु आर माइग्रेटेड फ्रॉम राजस्थान। ठीक है, तो इसी तरह से वाट एवर हमारे जो इतने सारे देवी देवता हैं वो अमेरिका वालों को नहीं पता कि वो देवी देवता है। उसका ग्लोबल वेरिफिकेशन नहीं है, वो लोकल वेरिफिकेशन के बेस पे दैट नॉलेज इज एक्सेप्टेड, बट इट इज नॉट साइंटिफिक बिकॉज वो ग्लोबल वेरिफिकेशन का क्राइटेरिया फुलफिल नहीं करता। ठीक है, यहाँ ट्रेडिशनल नॉलेज में मेटाफर, मतलब मेटाफर को हिंदी में क्या कहते हैं, पता है किसी को? मेटाफर क्या होता है? चलो इंग्लिश में बताओ, ये वर्ड सुना है क्या? उपमा। हाँ, उपमा, ठीक ठीक ठीक, कंपैरिजन है ना, झील सी गहरी आंखें, चांद है ना? सा रोशन चेहरा। हाँ 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 हाँ, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, तो ये एक उपमा होती है ऐसी। तो मेटाफर क्या है, थोड़ा सा कि आपको कोई चीज आप सिंबल से इस्तेमाल करते हैं, है ना, सिंबल से इस्तेमाल करते हैं आप। कोई सिंबल, कोई मान लो अगर आप जैसे वो चीज बनाने की बजाय, उस चीज की डायरेक्ट बात करने की बजाय किसी सिंबल के थ्रू बात करते हैं, तो उसको कहते हैं मेटाफर। ठीक है, तो कम्युनिकेशन ऑफ मेटाफर एंड स्टोरी, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है यहाँ पे ट्रेडिशन में, ट्रेडिशनल नॉलेज में। ठीक है, मेटाफर एंड स्टोरी, और स्टोरीज कैसी? पंचतंत्र की कहानियों जैसी, कनेक्टेड टू लाइफ, वैल्यूज, हितोपदेश जैसी, है ना, प्रॉपर बिहेवियर होगा उसमें, है ना। तो पंचतंत्र और हितोपदेश बड़ा इंपॉर्टेंट होता है हर कल्चर में, उनके अपने अपने पंचतंत्र और हितोपदेश होते हैं, है ना, हर एक कल्चर के होते हैं अपने अपने, है ना। वो कम्युनिकेशन जो है वो मेटाफर से, तो जैसे पंचतंत्र में मेटाफर से हो रहा है सारा का सारा काम। कैसे हो रहा है? सारे जानवर आपस में बातें कर रहे होते हैं वहां पे, पर जानवर उस तरह से तो बातें करते नहीं है। तो वो वहां पर जो गीदड़ है या चूहा है वो क्या है? एनिमल। वो एनिमल तो है, लेकिन इट इज अ मेटाफर फॉर अ सर्टेन काइंड ऑफ ह्यूमन बिहेवियर। व्हाई इज पंचतंत्र सो पावरफुल? वो जानवरों की कहानी बताती है कि आदमियों की कहानी बताती है? कहानी तो आदमी की बताती है, लेकिन ऊपर से देखो तो जानवर की कहानी लगती है, लेकिन असल में किसकी कहानी है वो? इंसानों की। असल में तो आदमियों की कहानी है ना वो ह्यूमन बिहेवियर की कहानी है, इसीलिए ह्यूमंस को यूजफुल है वो। और अगर वो जानवरों की कहानी होती तो ह्यूमंस के लिए यूजफुल उतनी नहीं होती ना वो। उसमें जो जानवर बिहेव करते हैं, वो चूहा और वो शेर, वो क्या जानवर वैसे बिहेव करते हैं क्या? असल का चूहा, असल का खरगोश कभी वैसे बिहेव करता है क्या? नो सर। कभी किसी शेर को अपनी परछाई देख के कुएं में कूदते हुए देखा है? सुना है कभी? नो सर। नो सर। नहीं सुना ना, लेकिन हमारी कहानी में कूदा वो, अपनी परछाई देख के वो कूद गया गुस्से में आके, है ना। तो वो क्या दिखा रहा था? वो जानवर की कहानी नहीं थी ना। जानवर जो था वो मेटाफर बना फॉर शोइंग अ सर्टेन काइंड ऑफ ह्यूमन कैरेक्टरिस्टिक। ठीक है, तो लोमड़ी को एक तरह के ह्यूमन बिहेवियर से मेटाफोरिकली इस्तेमाल कर दिया, खरगोश को एक दूसरे तरीके से कर दिया, शेर को दूसरे तरीके से कर दिया। इस तरह से पंचतंत्र की तो मेटाफोरिकली वो स्टोरी है कनेक्टेड टू लाइफ, वो सर्टेन वैल्यूज। हर एक पंचतंत्र की कहानी के बाद मोरल ऑफ द स्टोरी आता था, है ना। So the communication in the traditional knowledge system is through metaphors, through stories connected to life, values and proper behavior. That is the main form of communication. यहाँ क्या है? यहाँ प्रोसीजर ऑफ एविडेंस एंड थ्योरी। कम्युनिकेट करना है क्या? एविडेंस क्या है,
थ्योरी क्या है, स्टोरी नहीं सुनानी ज्यादा। यहां स्टोरी सुनाना पावरफुल है, ट्रेडिशनल नॉलेज सिस्टम में स्टोरी सुनाना पावरफुल है। इसलिए राम कथा है, इसलिए रासलीला है, इसलिए इतनी सारी कहानियां हैं, बिकॉज वो स्टोरी का पर्पस है एक ह्यूमन स्टोरी बतानी है जिससे लाइफ की वैल्यूज और प्रॉपर बिहेवियर प्रोपेगेट हो, उसका पर्पस वो है। वो जो मारीच है रामायण में, वो क्या मारीच वैसा होगा? या वो जटायु जो है, वो जटायु क्या वैसा हो रहा होगा कभी? इट इज ए मेटाफर, ठीक है। या जो राक्षस है, वो राक्षस वैसा रहा होगा क्या? वो मेटाफर है, ठीक है। तो ट्रेडिशनल नॉलेज में मेटाफर इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो जो भी कुछ ट्रेडिशनल नॉलेज में आता है एज सम काइंड ऑफ फॉर्म, है ना, उसको वैसे देखो कि वो मेटाफोरिकली वैसे आ रहा है, वो जरूरी नहीं है कि फिजिकली वैसा ही हो। रावण के 10 सर नहीं थे फिजिकली, वो मेटाफर है कि उसके 10 सिर थे। You can think वो like एक a आम 10% आदमी से at 10 the गुना same ज्यादा time. सोच सकता था, इसलिए उसको 10 सिर जैसा बनाते हैं। ऐसा नहीं है कि उसके बाकी 10 सिर थे, या देवी देवताओं के सबके 4-4 हाथ बनाते हैं या 8 हाथ बनाते हैं। क्या उनके ऐसा नहीं था कि देयर वाज ए कैरेक्टर जिसके 4 हाथ थे? वो 4 हाथ क्यों दिखाते हैं? वो मेटाफर है, क्यों दिखाते हैं 4 हाथ? ज्यादातर देवी देवताओं के 4 हाथ दिखाए जाते हैं। He can handle मोर 4 पावरफुल है वो। मोर पावरफुल, उनको दे कुड डू मेनी और- थिंग्स दैट नॉर्मल ह्यूमन पर्सन कैन नॉट डू। तो वो ज्यादा दिखाने के लिए कि उनमें ज्यादा पावर है, उनके 4 हाथ दिखाए देते हैं, है ना। तो ये मेटाफर है। या गणेश जी के कान इतने बड़े दिखाए जाते हैं, क्या मतलब है उस चीज का? his listening power is very good. हाँ, वो लिसनिंग पावर, ज्यादा अच्छे लिसनर, हमसे ज्यादा लिसनर एक ऐसा कैरेक्टर है जो हमसे ज्यादा अच्छी लिसनिंग कर लेता है ना। या आंखें बड़ी बड़ी हैं, ज्यादातर भगवान की आंखें बड़ी बड़ी दिखाई जाती हैं, है ना। प्राण प्रतिष्ठा जब होती है तो बाहर से वो दूसरी वाली आंखें चिपकाई जाती हैं मूर्ति के ऊपर, है ना। वो बड़ी 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 आंखें होती हैं, ज्यादा देखती हैं, वो मेटाफर होता है, दैट इज मेटाफरिकल। वो ज्यादा देखती हैं, ज्यादा सुनते हैं, ज्यादा काम कर सकते हैं, इसलिए वो ज्यादा हाथ, ज्यादा सिर, ज्यादा बड़ी आंखें, ज्यादा बड़े कान, वो सब मेटाफर है। ओके, उसको लिटरल मान लेते हैं लोग, गड़बड़ कर लेते हैं। वो मेटाफर क्या है ये भूल जाते हैं कि ये एक किसी चीज के लिए एक सिंबलिज्म है। सिंबलिज्म को छोड़ के उसकी उसी लिटरली उसको ट्रू मानने लगते हैं, वो गड़बड़, उससे लड़ाई होने लगती है। ओके, तो here the focus is on quantitative written record। ये ओरल रिकॉर्ड नहीं, जो क्वालिटेटिव ओरल रिकॉर्ड है कि ऐसा सुना है, दादी ऐसा कहती थी, ये कहानी है, वो नहीं। यहाँ चाहिए रिकॉर्ड क्वांटिटेटिव और रिटर्न रिकॉर्ड चाहिए। खाली ओरल रिकॉर्ड से काम नहीं चलता। ओके, और दिस इज डिसिप्लिन बेस्ड, एक स्ट्रिक्ट डिसिप्लिन फॉलो करना पड़ता है साइंस के अंदर। ओके, ट्रेडिशनल नॉलेज इज because it is holistic, it is applied to daily life। ओके, और ये इसमें थ्योरीज इंपॉर्टेंट है, माइक्रो और मैक्रो थ्योरीज, छोटी छोटी बातों के लिए और पूरे इंटीग्रेशन के लिए भी थ्योरी चाहिए। ओके, एंड मैथमेटिकल मॉडल्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, सो दिस इज द मेन डिफरेंस कि ट्रेडिशनल नॉलेज ऐसा नहीं है कि जो साइंटिफिक नहीं है वो नॉलेज नहीं है, वो नॉलेज है लेकिन साइंटिफिक नहीं है। साइंटिफिक नॉलेज होने के लिए these are the criteria, that you focus on parts, that you focus on understanding the how, that you focus on evidence, that you focus on doubt, skepticism, okay, that focus on direct and indirect measurements and observations, that you are doing hypothesis testing, verification, falsification, that you have a trust in global verification, not just local verification. Something is not true because it is acceptable in your village, it has to be acceptable to the entire scientific community of the world, then it is correct, and for that it has to be fulfilling certain benchmarks, and it has to be as per certain acceptable standards. Okay, there has to be quantitative written record, very very important,
Just qualitative oral record is insufficient for in the scientific world. Okay, it is discipline based. There is huge importance of theories. वो discipline जो है वो theories और interlinked है वो, and then there are mathematical models in all disciplines. Okay, well engineering तो mathematical model भरे पड़े हैं, finance में भी mathematical models बहुत सारे हैं, HR में भी there are mathematical models. Okay, so I encourage you to find out some mathematical models in your discipline. Okay, what are the mathematical models in your discipline? Find that out also. Okay, and find out some recent mathematical models, not some old mathematical models, new ones. And that for that you may have to refer to the books and or maybe some research papers. Okay, इस पर किसी को कुछ क्वेश्चन या कोई कमेंट? This comparison of scientific with versus traditional knowledge. Any doubt, any comment? So what I'm saying is you can do a scientific study of a tradition also. Can you give me some example? How can you do this? Looks like oxymoron. How can you do a scientific study of a traditional thing? How can you do that? Can anybody give me some guess, some example? That if somebody studies this in a scientific manner, then it is a scientific study, but it is of the tradition, of some traditional knowledge system. Try to make some guesses. Yes? So recently I have seen a news in which people are testing on Mahamrityunjay Jap. Is it effective for the ill people? They are doing Mahamrityunjay Jap for those peoples Okay. who are All admitted right. in Because ICU. it is believed that Mahamrityunjay Jap helps in saving the lives of those who are near deathbed. So now people are, some people are saying, okay, we will examine it scientifically. Is it really true? Using how will they examine it scientifically? So global explanation, experimentation. Experimentation करेंगे या observation करेंगे? Sir, it is experiments, sir. They are in sample they choose 40 people and they doing Mahamrityunjay Jap nearby their beds, and after that they were observing. Observation is there. Observation is there. Na? It is an intervention. जो डेथ बेड पर लोग हैं उनको एक इंटरवेंशन दिया गया कि चलो ये देके देखते हैं, एक मेडिसिन की तरह ये देके देखते हैं कि इसका कुछ असर भी होता है या खाली एक ऐसे ही बिलीफ है कि ये काम करता है. ठीक है, चलो दिस वुड बी अ साइंटिफिक स्टडी. उसका जो भी रिजल्ट आएगा, है ना, कि भाई वो इतनों पे असर हुआ, इतनों पे असर नहीं हुआ, और फिर वो एक बार हुआ क्या? एक एक्सपेरिमेंट, विल वन एक्सपेरिमेंट बी सफिशिएंट? कि 14 लोगों पे एक अस्पताल में एक्सपेरिमेंट हो गया, विल दैट बी सफिशिएंट? नो सर. ठीक है ना. कोई मेडिसिन कैसे एक्सेप्टेबल होती है आजकल? वैक्सीन के बारे में सब लोगों को पता ही है कि वैक्सीन के बड़े सारे ट्रायल होने वाले हैं. कैसे होंगे वो? अभी तक अभी ट्रायल चल भी रहे हैं. क्या हो रहा है उसमें? पहले तो सर ड्रग का लैब में मॉडिफाई करेंगे, उसके बाद टेस्टिंग करेंगे कुछ पर्टिकुलर पेशेंट के ऊपर जो कि उस पर्टिकुलर डिजीज से कम्युनिकेबल डिजीज या किसी भी डिजीज से संक्रमित है. फिर उसके बाद उन टेस्ट का रिजल्ट्स को हम देखेंगे, तो उसमें एक लिमिट बना देंगे कि अगर ये 90% या 95% से अबव पेशेंट पॉजिटिव रिस्पॉन्स देते हैं तो ड्रग पास हो जाएगी, नहीं तो दोबारा ट्रायल करके उसमें कुछ मॉडिफाई करके ड्रग मॉलिक्यूल में. उसके भी कई स्टेजेस हैं. हाँ,
पता करो उसकी कितनी स्टेजेस हैं. आई थिंक दिस विल बी वेरी इंपॉर्टेंट थिंग. इसके बारे में लिटरेचर तुमको मिल जाएगा कि ये वैक्सीन कैसे पास होगी, है ना. उसका प्रोटोकॉल क्या है. फाइंड आउट व्हाट इज द प्रोटोकॉल फॉर अप्रूवल ऑफ द ट्रायल दे आर एक्सेप्टेड ना. हाँ, तो वो कितने राउंड्स ऑफ टेस्टिंग होंगे, पहले कितने लोगों पे टेस्ट करना होगा, और उसमें कितना रिजल्ट आएगा तो सेकंड ट्रायल के लिए अप्रूवल मिलेगा, अदरवाइज नहीं मिलेगा. और सेकंड ट्रायल में कितना सक्सेस रेट मिलना चाहिए कि थर्ड के लिए अप्रूवल मिलेगा और नहीं मिलेगा. तो अगर महामृत्युंजय जाप की वैलिडिटी एस्टेब्लिश करनी है साइंटिफिक तरीके से, तो वही जो वैक्सीन का तरीका है उसी से मिलता जुलता तरीका लगना चाहिए ना फिर. राइट. अगर उससे कम सक्सेस रेट आता है तो वो साइंटिफिकली तरफ से वो एक्सेप्टेबल नहीं होना चाहिए फिर. और अगर उस तरह का कुछ आता है तो वो साइंटिफिकली एक्सेप्टेबल होना चाहिए. राइट. But in case of vaccine, it is tested on animals also, ना? पहले एनिमल पे टेस्ट होगा, बाद में आदमियों पे टेस्ट होगा, है ना. और उसके पहले आजकल पहले कंप्यूटर पे टेस्ट होगा, सिमुलेशंस पे टेस्ट होगा, उसके बाद एनिमल्स पे टेस्ट होगा, और फिर आदमियों पे भी 2-3 राउंड होंगे. पहले बहुत कंट्रोल्ड वे में टेस्ट होगा, बहुत लिमिटेड लोगों के साथ टेस्ट होगा, उसके बाद थोड़े ज्यादा लोगों के साथ टेस्ट होगा, उसके बाद थोड़े और ज्यादा लोगों के साथ टेस्ट होगा, उसके बाद मार्केट में प्रोडक्शन की परमिशन मिलेगी, है ना. तब वो ये हुआ ग्लोबल वेरिफिकेशन, है ना. लोकल वेरिफिकेशन क्या हुआ कि सुना है फला गांव में एक वैद्य जी हैं जो भभूत देते हैं और उससे ठीक हो जाता है मामला. दिस इज लोकल वेरिफिकेशन, है ना. अपने यहाँ बहुत कुछ है ऐसा जो लोकल वेरिफिकेशन पे, है ना. जैसे बुटाटी धाम. हाँ, जैसे बुटाटी धाम यहाँ पर है एक जगह. बहुत कुछ है अपने यहाँ ऐसा भरा पड़ा है ना. लोकल वेरिफिकेशन है ना. उसका ग्लोबल वेरिफिकेशन हो ही नहीं सकता, और कोई स्टैंडर्ड नहीं है वेरिफिकेशन करने का. खाली इज इट वो ट्रस्ट फॉर इनहेरिटेड विजडम. दादी जी कहती थी ऐसा इसलिए ऐसा है, या दादाजी कहते थे इसलिए ऐसा है ना. उसमें वेरिफिकेशन की बहुत ज्यादा स्कोप भी नहीं होता फिर. ओके, बट साइंटिफिक वर्ड में दिस इज इंपॉर्टेंट. So you have to find out what are the mathematical models. Okay, find out how do people verify their claims. So how is all the disciplines that you belong to, because you have come from a modern education system in those disciplines, they are all considered as scientific disciplines. All the disciplines that you are a student of, whether it is social science or it is engineering, you are students of modern science in the broad sense. And all these disciplines do believe in these kind of approaches. They do not believe in these kind of approaches. So research in any of these disciplines that you are a member of will have to qualify these kind of expectations, will have to meet these standards. Okay, all these standards will have to be met, and these are some common grounds to these as well as these. This you can see